Dear students, my best wishes. In this lecture, we shall do some just discussion about capitalization and punctuation. First of all, what is capitalization? It means using capital letters. Now, where do we use capital letters? A capital letter, as you all know, is used at the beginning of every new sentence. Whenever we start a new sentence, that must begin with a capital letter. Then, every word of a proper noun also begins with a capital letter. Now, proper noun here I mean every country, town, city, village. So, the names of all these, the names of books, the names of languages, the names of nations, the names of subjects, all these begin with capital letters. Then every quotation begins with a capital letter. Then every sentence after beginning of inverted commas, just as we write in direct speech. Then all single letters of most of the abbreviations, just as we write BA, MA, CA, MBBS, so we write capital letters. Then there are some singularly unique things. God, it is always written in capital. Almighty, capital. Then I, whenever we use it as a pronoun, we use capital I. Then designations, Mr. Wherever we write Mr, MR, and then full stop, so M will be capital. Doctor, DR, Professor, P, ROFP, capital. So in this way we see that all these words, all these letters have capital form. And then every line of a poem also begins with a capital letter. So, brief introduction about capital letters. Then we come to punctuation marks. Punctuation is very important. We should never ignore it, because wrong punctuation can change the meaning of the entire sentence. Now, I just give you one example. There is a sentence, the patient said the doctor is a fool. Now, we have to punctuate it. It can be punctuated in two ways. One is inverted commas begin, the patient, inverted commas close, comma, said the doctor, comma, inverted commas begin, is a fool, inverted commas close. So here it means the patient said the doctor. Doctor ने कहा की कहा the patient is a fool. लेकिन हुन दूजी बार देखो, the patient said, same sentence, the patient said, comma, commas begin, the doctor is a fool, commas closed. तो हुन इत्थे हो गया कि patient ने कहा कि डॉक्टर जिहड़ा है वो फूल है, तो जिहड़ी सेंस जिहड़ा मीनिंग सी बिल्कुल उल्ट आपां देखिया भी हो गया। एक सेंटेंस होर देखो, सेंटेंस है कि वोमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। हुण इस सेंटेंस दे विच असीं पहलां इदां करदे हां कि वोमन विदाउट हर मैन कॉमा इज़ नथिंग, कि अपने आदमी तो बगैर औरत कुछ नहीं। हुण दूजे ढंग नाल देखो, वोमन कॉमा विदाउट हर कॉमा मैन इज़ नथिंग। औरत उस तो बगैर मनुख कुछ भी नहीं या मर्द कुछ भी नहीं। सो इस तरह फर्क पै जांदा गा। सिंपली कॉमे लाउण या हटाउण नाल या इनवर्टेड कॉमास नाल असीं देखिया कि जो सेंटेंस का
मीनिंग सी वो होर दा होर ही कुछ हो गया। इस करके पूरा ध्यान रखना आपां पंक्चुएशन दा। हुण पंक्चुएशन दे विच आपां सब तो पहलां फुल स्टॉप की वरतों देखते हैं। डॉट हुंदा है फुल स्टॉप, ये तकरीबन तुहानूं सब नूं पता है, आपां केवल हिंट्स जो है डिस्कस करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिहड़ा फुल स्टॉप है इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी सिंपल एंड इंपैरेटिव सेंटेंस। जो साडे सिंपल सेंटेंसिस ने और साडे इंपैरेटिव सेंटेंसिस ने उन्हां सारियां दे एंड ते इस दी वरतों हुंदी है। फिर दूसरी गल हैगी आ ऑल एब्रीविएशनस, जिन्हें साडियां एब्रीविएशनस ने तो उन्हां च असीं देखदे हां BAMA या असीं कहने आ DA, कुछ भी इस तरह कहिए तो असीं देखदे हां उन्हां दे विच आफ्टर एवरी लैटर वी यूज़ ए डॉट और ए फुल स्टॉप। इन ईमेल असीं देखदे हां कि भी असीं उस नूं डॉट कहने हुंदे आ, जिस तरह कोई भी ईमेल एड्रैस दिंदे आ या असीं किते भी कोई इंटरनैट एड्रैस दिंदे आ तो उत्थे असीं डॉट कह के जरूर लाउने हुंदे आ, नाल कह दिंदे .com या .in जो भी कहना होवे। इस तरह असीं जानी जो साडा फुल स्टॉप है उस दी वरतों जिहड़ी है वो करते रहंदे हां। दैन कम्स साइन ऑफ इंटैरोगेशन। साइन ऑफ इंटैरोगेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। इनू असीं क्वेश्चन मार्क भी कहने हैं। क्वेश्चन मार्क है जी एको गल है। और दूसरी गल जिथे भी साडे मन च कोई डाउट पैदा हुंदा या साडी कोई क्वेरी है तो उत्थे असीं साइन ऑफ इंटैरोगेशन ला दिंदे हैगे आ। जानी इहदा भाव यह है कि असीं कुछ पुछ रहे हाँ या साडे मन दे विच कुछ डाउट है। दैन कम्स साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मकी चिन्ह। विस्मकी चिन्ह जिहड़ा है डंडी नीचे बिंदी, तो ये कदों लगता है? इन ऑल एक्सक्लामेटरी सेंटेंसिस एंड आफ्टर ऑल एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। कई बार एक वर्ड ही जिहड़ा हैगा वो वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन हुंदा, अलास साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लग जाएगा, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, मॉर्निंग, वंडरफुल, कुछ भी इस तरह साडा है, या कोई पूरा सेंटेंस हो सकता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिहड़े हैगे ने, या फिर जिहड़े साडे ऑप्टेटिव सेंटेंसिस हुंदे ने। ऑप्टेटिव जिन्हां च कोई स्ट्रोंग विश या प्रेयर, वी एक्सप्रैस ए विश और ए प्रेयर, मे नाल शुरू हुंदे ने आम तौर पर, मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन कई बार असी गॉड वगैरह लाउण दी बजाए ये भी कह दिंदे आ, कल्ला ही ब्लैस यू कहता किसी नूं गॉड ब्लैस यू कहण दी बजाए जानी विश या प्रेयर हुंदी है, तो उन्हां च असी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लाउंदे हां। दैन वी हैव ए साइन कॉल्ड सैमी कोलन। सैमी मीनस हाफ, हाफ कोलन। फुल कोलन किवें हुंदा? दो डॉट, एक उपर बिंदी एक नीचे बिंदी, वो कोलन हुंदा। ते सैमी कोलन की आ? उपर डॉट है या बिंदी है, नीचे कौमा है। हुण ये जिहड़ा सैमी कोलन है तो ये एक पॉज हुंदा, एक तरह का स्टॉप है, लेकिन ये स्टॉप जिहड़ा है फुल स्टॉप तो शॉर्टर है और जो साडा कौमा है उस तो लॉन्गर हुंदा है। तो वैन एवर वन क्लॉज इज कंप्लीटेड तो वी नॉर्मली यूज सेमी कोलन। तो जस्ट we use a comma only when there is a single word or something like that or two words, but here we use it when there is a change of clause or one clause that is complete. So we don't just use full stop. Then there is colon, one dot, second dot under it, so it is called colon, यानी दो बिंदियां ऊपर नीचे। तो इट इज जनरली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, ए प्रॉब्लम, एन एक्सप्लेनेशन और एन एग्जाम्पल। कोई उदाहरण देनी है, असी गल दस के कि जिमें 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 ये हुंदा है उदों बाद असी कोलन ला दिंदे हैं। या असी कई बार ये भी कह दिंदे हैं कि भी जे हेठ लिखे अनुसार हैं, इस दे गुण हेठ लिखे अनुसार हैं, फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ या फॉलोइंग आर इट्स क्वालिटीज़, ये कह के उदों बाद असी कोलन जिहड़ा हैगा वो ला दिंदे हैं।
या फिर ये हुंदा गा कि टू इंट्रोड्यूस सेंटेंस जिहड़े डायलॉग फॉर्म दे विच कोई सेंटेंस जिन्हें असी लिखा राम उदों बाद कोलन लाता। असीं ये नहीं कहते कि राम सेज राम आस, कुछ नहीं कहते, राम कोलन उदों बाद उसकी स्पीच आ गई, नीचे श्याम कोलन एंड हिज स्पीच, सीता कोलन एंड हर स्पीच, गीता कोलन एंड हर स्पीच, then we use it like this. And sometimes to express time in numerals we also use dash. कई बार इदा भी लिखा होंदा गा घट्टा वैसे है, जे लिखना वैसे मान लो 5:10 5 पा देंगे, उस तो बाद कोलन पा देंगे, उस तो बाद 10 पा देंगे, इदा का भी कुछ चलता है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा प्रचलित चीज़ नहीं है। Then comes comma. Now comma is the comma the spelling है COMMA, COMA नहीं कहना, वो कोमा हो जाता, कोमा होंदा बेहोशी की हालत है ना, कोमा दे विच जिवें कोई मरीज होंदा गा, कोमा COMMA। It is the shortest pause in punctuation or in speech we can say. It is used to separate two or more of the same part of speech. सेम पार्ट ऑफ स्पीच असी दो या दो तो वध मान लो 3 4 5 वर्ड्स यूज़ करते हैं, दो होण तो असी एंड नाल भी लिख देंगे, दो तो वध होण जे असी कहना होवे मान लो असी नाउन वरतते हैं, राम श्याम सीता एंड गीता, तो राम श्याम राम कौमा श्याम कौमा फिर कौमा ला के सीता, फिर उसके बाद एंड पा के गीता लिखता, यानी नाउनस आ गए। फिर इस तरह साढ़े कोई एडजैक्टिव आ सकते हैं, असी कहिए ही इज़ ऑनैसट कॉमा ट्रुथफुल कॉमा हार्ड वर्किंग एंड उदों अगे कोई भी होर जिहड़े हैगे नेगे इस तरह के असी दे सकते हैगे। फिर टू सैपरेट टू और मोर क्लॉजेज, चाहे वो एक सबऑर्डीनेट ते एक मेन क्लॉज हो, चाहे दोनों कोआर्डीनेट क्लॉजेज होण, तो उन्हां दे विच भी कॉमा लग जाता उन्होंने सैपरेट करने वास्ते। दैन टू सैपरेट डायरैक्ट स्पीच फ्रॉम इनडायरैक्ट स्पीच, जिथे इनवर्टेड कॉमे असीं शुरू करते हैं तो उत्थे असीं देखते हैं कि नीचे एक कॉमा जिहड़ा है वो भी असीं ला दिंदे हैगे आ। आफ्टर एन एडवर्बियल इन द बिगिनिंग, सेंटेंस के शुरू में कोई एडवर्बियल लग्या हुंदा, किवें लग्या हुंदा, इनफैक्ट ला के कॉमा ला के फिर सेंटेंस असीं शुरू करांगे। एट लास्ट ही फाउंड आ पिक्चर ऑफ वाटर, मान लो एट लास्ट ते कॉमा लग जाएगा, या क्लीयरली, यह जे कुछ भी वर्ड्स जिहड़े है अगे आ सकते हैं, असीं कॉमा लाउंदे हैं। फिर टू सैपरेट सेम वर्ड्स वैन यूज रिपीटेडली इन ए सेंटेंस, किवें जिवें असीं कहने ट्राई अगेन, ट्राई असीं लाता कॉमा, फिर ट्राई फिर कॉमा लाता, क्योंकि उन्होंने अगेन नाल भी नहीं असीं जोड़ते, ट्राई अगेन, तो इस तरह असीं ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। समटाइम्स अवर सेंटेंस स्टार्ट्स विद यस और नो, यस और नो तो बाद भी फिर असीं कॉमा लाउने हैं, किवें पहला यस कॉमा ला के आई विल हैल्प यू, या नो कॉमा ला के आई वॉन्ट टू गो देयर, इस तरह असीं जिहड़ा है ला दिंदे हैगे आ। तो फिर आफ्टर डेट्स सैल्यूटेशनस क्लोजिंग्स एटसेट्रा इन आवर लैटर्स एंड एप्लीकेशनस, तो सैल्यूटेशनस किस तरह कि जिवें आप लैटर शुरू करते आप लिखा रिस्पैक्टेड सर कॉमा लावांगे, रिस्पैक्टेड मैडम कॉमा ला देंगे, डियर सर या डियर सर्स असी उस तरह कॉमा ला दें उत्थे। या फिर साडी क्लोजिंग हुंदी है, क्लोजिंग च आपां की कहने थैंकिंग यू कॉमा ला के अगे यूअर्स फेथफुली या यूअर सनसीयरली, फिर उत्थे कॉमा लग जाता है। या असीं कहने विद रिगार्ड्स, उत्थे असीं कॉमा ला दें, अगे असीं जो भी लिखना गा यूअर्स सनसीयरली, यूअर्स अफैक्शनेटली, यूअर्स लविंगली, जिहो जिहा साडा रिश्ता है उत्थे असीं लाउंदे हैगे आ। तो कई बार असी जो साडियां एप्लीकेशन अजकल दोनों तरह के चलते हैं ट्रेंड जोड़े है एप्लीकेशन के विच जे असी लिखते हैं द रजिस्ट्रार कौमा अगे यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी फिर कौमा पटियाला उत्थे डॉट ला दें। एक चीज़ का ध्यान रखना कि एप्लीकेशन के जो असी टू लिखते हैं ना टू तो कौमा जोड़ा है वो बिल्कुल नहीं लगना, इस गल का असी खास ध्यान रखना हैगा। तो इस तरह ये जो कौमा है ये वेरीअस फॉर्म्स दे विच एंड वेरीअस प्लेसिस ते असी वरतों जिहड़ी हैगी आ वो करते रहने आ। तो
इस नूं थोड़ा जिहा तुसीं होर डिटेल दे विच अपने ग्रामर दे विचों पढ़ सकते हो। दैन वी हैव हाइफन। हाइफन इज यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स संयुक्त शब्द बरतन वास्ते, लाइक फादर इन लॉ फादर हाइफन इन हाइफन लॉ, इस तरह मदर इन लॉ कमांडर इन चीफ, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वैल्यू हाइफन बेस्ड, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्टैप सन स्टैप डॉटर, इस तरह जिहड़े है साडे वर्ड्स। दैन टू कंबाइन वर्ड्स विद सर्टन प्रीफिक्सिज, असी किसी वर्ड के अगे कोई प्रीफिक्स लाने आ तो उहदे तो बाद प्रीफिक्स तो बाद और वर्ड तो पहला असी हाइफन जिहड़ा है वो ला दिंदे हैगे आ। जिस तरह असी लिखते हैगे आ, मान लो रीस्टार्ट, हुण रीस्टार्ट जिहड़ा है री लिख के हाइफन स्टार्ट, और इस तरह असी जानी होर जिहड़े वर्ड्स ने को एजुकेशन, हुण जिहड़ा को है कई बार तक इको बना के लिखण लग गया अजकल, लेकिन को हाइफन एजुकेशन, एक्स हाइफन प्रेजिडेंट, ई हाइफन मेल, इदा असी जिहड़ा है वो इहदी वरतों जिहड़ी हैगी है वो करते रहने। डैश, डैश जिहड़ा है इट इज़ लॉन्गर दैन द हाइफन, डैश इज़ लॉन्गर दैन द हाइफन, और इहदी असी वरतों कित्थे करते हैं, टू ब्रेक और एन अब्रप्ट टर्न इन ए सेंटेंस, साडे सेंटेंस दे विच किते एकदम ब्रेक पैंदी है, या कोई अब्रप्ट, अब्रप्ट की हुंदा सडन, सडन कोई असी चेंजड गल कहनी हैगी तो उत्थे असी ला दिंदे हांगे। टू इंडीकेट ए फाल्टरिंग स्पीच, कई बार कोई जिहड़ी स्पीच है असी रुक रुक के दिंदे हैगे आ ते उहनूं असी फाल्टरिंग स्पीच कहंदे हैगे आ, और वो थोड़ा जिहा बोलता फिर डैश लाता, फिर बोलता फिर डैश लाता, इस रूप दे विच असी जिहड़े है वो लाउंदे रहिंदे हैगे। और फिर की हैगा कि भी एक इदां दा भी हुंदा जिस तरह जिन्हों असीं पेरेंथीसिस कहने आ, या ब्रैकेट टाइप असीं आइडिया विच कोई चलदी गल दे विच कोई होर आइडिया देना होवे ते फिर असीं डैश ला दिंदे आ, फिर वो गल दे दिंदे आ, फिर दुआरे डैश, उत्थे फिर डबल डैश जिहड़ा है साडा वो लगदा हैगा जड़ी उहदे विच वी नीड टू डैशिज। दैन वी हैव एलिप्सिस और डॉट्स, जिमें ब्लैंक स्पेस करनी होवे ना आपां डॉट डॉट डॉट, आम तौर पर 3 डॉट लाने होंगे डॉट डॉट डॉट, तो इत्थे की असीं ब्लैंक स्पेस आम तौर पर जिहड़ी हैगी आ शो करते होंगे हैगे। तो अदरवाइज वो कंटीन्यूटी जिहड़ी हैगी आ, या मान लो असीं डैश 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 लाता तां भी, या असीं डैश की बजाय डॉट 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 ला दिंदे आ, और डॉट 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 ला के तो भाव हुंदा कि ये जिहड़ी साडी गल है स्पीच है या विचार है इट इज़ कंटीन्यूड लाइक दिस। दैन वी हैव इटैलिक्स, इटैलिक्स तुसीं देखे होणगे टेढ़े दे जिहड़े है वर्ड्स लिखे हुंदे नेगे ते उन्हां नूं असीं इटैलिक्स कहने आ। तो कई बार पेपर दे विच आ जांदा कोई पैराग्राफ दिता हुंदा गा कि गिव द मीनिंग्स ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, इदां वो कह दिंदे हैगे नेगे। तो ये कित्थे हुंदे ने, टू शो एम्फेसिस, पहली गल असीं किसी वर्ड ते किसी फ्रेज ते कोई जोर देना है, एम्फेसिस देना है, तो दैन वी यूज़ इटैलिक्स, यानी उन्होंने असीं इटैलिक्स दे विच लिख दिंदे हां। या फिर टू इंडीकेट टाइटल्स ऑफ बुक्स, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज एटसैट्रा, रनिंग स्पीच दे विच कोई आ गया तो उन्होंने असीं इटैलिक्स दे विच दे दिंदे हैगे आ। या टू इंडीकेट फॉरेन वर्ड्स और वर्ड्स ऑफ ए डिफरेंट लैंग्वेज, और just some phrases which are not common in that language, or some quotation, so we use these words in italics, or we write these words in italics. So it is just to differentiate, Then we have inverted commas, very important, inverted commas. तो इनवर्टेड कॉमास डबल भी होंदे ने और सिंगल भी होंदे ने, बहुते थावां ते फर्क नहीं हुंदा, लेकिन कुछ थावां ते सानू अंतर जिहड़ा है वो करना पैना हैगा। तो पहली गल तो हैगी है कि जिहड़े इनवर्टेड कॉमास आर यूज टू इंडीकेट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए कोटेशन। कोटेशन शुरू हुंदी है इनवर्टेड कॉमास शुरू, एंड हुंदी है इनवर्टेड कॉमास क्लोज्ड, इदां सानू वो करना पैंदा है। फिर टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स
spoken by a person as in direct speech। तो डायरैक्ट स्पीच ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਵਿਦਿਨ ਇਨਵਰਟਿਡ commas। Then to indicate the title of a poem, story, book, article or scripture etc. So we just write that in inverted commas, you are within inverted commas। It can be a single inverted commas or double inverted commas। To emphasize a word or phrase or to indicate a word of a different language, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਏ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਡਬਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾਸ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। APOSTROPHE APOSTROPHE ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ। ਜਾਨੀ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਹਤਾ, ਕਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕੌਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਨਾਊਨ ਔਰ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਜ਼ ਪਲੇਜ਼, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਐਸ, ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦ ਆਲ ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਐਂਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਐਸ use only the apostrophe। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਐਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਤਾਂ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਕੌਮਾ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ? ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਮੰਥਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਦ ਆਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨਸ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਵਿਚ ਡੋਂਟ ਐਂਡ ਵਿਦ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਐਸ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੋਸਟਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਮੈਨ ਹੈ, ਵਿਮੈਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾ ਔਰ ਐਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਜ਼ ਪਲੇਜ਼, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ, ਹਾਰਡੀਜ਼ ਨੋਵਲਸ, ਚੇਅਰਮੈਨਜ਼ ਸਪੀਚ, ਆ ਡੇਜ਼ ਵਰਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਆ ਡੇਜ਼ work, a mint's time, mint apostrophe s, a mint's time, the boy's coat, the boy apostrophe s, एक लड़का का, the boy's coat,
लेकिन हुण बहुवचन है, लड़के ने द बॉयज़ कोट्स। हुण द बॉयज़ नाल असीं अपोस्ट्रोफी लाउणा है कल्ला, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लाउणा। ऐ नहीं कि बॉयज़ कर दिए जने बॉयज़ भी ला दिए फिर अपोस्ट्रोफी एस भी ला दिए, कल्ला अपोस्ट्रोफी लगूगा। मीनिंग इहदा उही है, द बॉयज़ अपोस्ट्रोफी कोट्स भाव कि लड़कियां दे कोट। जेम्स इज़, जेम्स नौ है, भावें पिछे एस लग्या लेकिन है ये एक व्यक्ति का नाम। जेम्स अपोस्ट्रोफी एस ला के जेम्स इज़ शर्ट। जिवें अपना नाम मान लो हरबंस होवे किसी का, पिछे एस लग्या, हुण हरबंस लिखांगे, जे लिखना होवे हरबंस इज़ कोट तो हरबंस अपोस्ट्रोफी एस लगूगा, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। चिल्ड्रनस टॉयज़, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रनस टॉयज़। इस तरह मैनस ਵੀਅਰਸ कुछ भी होवे तो वो असी ये गल का ध्यान रखना, जे एस वाला प्लूरल है तो असी की लावांगे भला, सिर्फ कोमा। दैन टू शो ओमिशन ऑफ सम लैटर और लैटर्स, कई बारी एक या एक तो वध अखर जिहड़े ने वो मिसिंग ने, उन्होंने इंडीकेट करने वास्ते असीं सिर्फ कॉमा ला दें। ये बड़ा कॉमन है, प्रचलित है। कैन नॉट नूं असीं लिख देना कांट, CAN पा के अपोस्ट्रोफी लाता, T लिखता कांट। कैन नॉट दा शॉर्ट बन गया, डू नॉट दा बन गया डोंट, डज नॉट दा बन गया डजंट। यानी जिहड़ा भी मिसिंग है ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੈਵਨਟ, ਹੈਜ਼ਨਟ, ਹੈਡਨਟ, ਇਜ਼ਨਟ, ਆਰਨਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਵਿਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ DLL ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਲ ਗੋ, ਆਈਲ ਕਮ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨਰੇਬਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਨੇਬਲ, HON ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ BLE। हुण इट इज़ नूं किवें लिखांगे, इट अपोस्ट्रोफी एंड दैन एस। इट इज़ है ये, इट्स नहीं, इट इज़। यानी इनू बोलण वेले भी थोड़ा जिहा आपां कर लीए। हुण लैट अस, एक लैट लिखिए एक नाल अस लिखिए, लेकिन दूसरे पासे असीं की करदे हां, लैट अपोस्ट्रोफी एस, लैट अस बन गया। लैट अस फास्ट बोलते हैं असीं, लैट अस। तो इदा असी जिथे भी साडे कोई मिसिंग लैटर हैं या लैटरस हैं तो उत्थे असी अपोस्ट्रोफी ला देंदे हैगे आ। दैन टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ एब्रीविएशनस, लैटरस एंड फिगर्स। किवें भला, MA ने, हुण एक MA तो 1 MA लिखता, जे 2 MAs ने, 3 MAs ने, फिर असी MA लिख के पूरा M.A. उस तो बाद असी की करांगे, अपोस्ट्रोफी एस ला देंगे, MAs बन गया। जे असी कहिए कि देर आर 2 MAs है ना, इदा लिख देंगे। फिर BAs, BA अपोस्ट्रोफी S, MLAs, MLA, M फुल स्टॉप, L फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफी S, MLAs। जानी असी प्लूरल जिहड़ा है वो बनाता। या कई बार कोई फिगर्स होंदियां नेगियां, जे आप कहिए कि 2 5s मेक 10, 2 5s मेक 10, 2 5s, 2 लिख दिए, फिर 5 नंबर असी पाता, यानी 5 पाता, फिर अपोस्ट्रोफी एस पाता, 2 5s बन गया, यानी इसनूं प्लूरल बना लिया, मेक 10। या फिर साडे कोई लैटरस ने, उन्होंने डबल दसना होवे, असी मान लो ये कहना होवे कि देर आर 2 C's एंड 2 E's इन द वर्ड सक्सीड। वो किस तरह हो जाऊगा, 2 C's, C पा के अपोस्ट्रोफी S, E पा के अपोस्ट्रोफी S, यानी C का प्लूरल बन गया, E का जिहड़ा है वो प्लूरल उस तरह बन जाता है। ये असी ध्यान रखना अपोस्ट्रोफी की वरतों दे विच। एक चीज़ होर ध्यान रखनी है, अवॉइड यूजिंग डबल अपोस्ट्रोफीज एंड यूजिंग अपोस्ट्रोफीज विद लाइफलैस थिंग्स। जानी एक गल ये करनी हैगी है कि असी जानी डबल नहीं यूज़ करने। ऐ ना कहिए कि माई फ्रेंड्स अंकल्स हाउस, माई फ्रेंड नाल भी अपोस्ट्रोफी एस लाता,
अंकल नाल भी अपोस्ट्रोफी एस लाता कि माई फ्रेंड्स अंकल्स हाउस, यानी मेरे फ्रेंड दे अंकल दा घर। ये गलत आगा। की कहांगे फिर इस द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स अंकल, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स अंकल, इदा कहांगे। दूसरी गल, लाइफलैस जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नाल असीं ना लाइए। जिवें असीं कहने आ मैनस लैग, ठीक आ, लेकिन टेबल्स लैग या चेयर्स लैग ना कहिए, चेयर्स बैक ना कहिए, मैनस बैक, ठीक आ। तो इदां असीं लाइफलैस जिहड़ियां चीज़ां ने तां उन्हां नाल भी असीं इहदी वरतों जिहड़ी है ਉਹ उस रूप दे विच नहीं करनी हुंदी। तां सिर्फ जो साडे लिविंग हैं उन्हां नाल ही असीं ਇਹ ਵਰਤੋਂ करते हैं। अपोस्ट्रोफी ये वर्ड भी याद रखना और ये याद रखना कि अपोस्ट्रोफी कित्थे लगदा और अपोस्ट्रोफी एस कित्थे लगदा, ये इंपॉर्टेंट गल हैगी आ। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गॉड ब्लैस यू ऑल।